So before we move further, we need to know what are magnetic field lines. So it's basically, whenever as you talk about magnetism, you know that magnetic field is a region around a magnet where magnetic field, where the magnetic force can be felt by any object, any magnetic material. For example, if I draw a bar magnet, we know that there is a region around this bar magnet where any iron body is going to experience a force. Yes, any iron object or another another magnetic material can experience force. So iron, nickel, all these things are going to experience the force in the magnetic field. Now, how to visualize the magnetic field? The way to visualize magnetic field is through magnetic field lines. So these are the discrete lines to represent a continuous magnetic field. Magnetic field is a kind of a cloud concept, like it's a region where you feel the experience the force. So when you imagine magnetic field, you will imagine it as like a cloud around this bar magnet or around this current carrying wire, where the effect of the magnetism is being felt by another magnetic material. But when I have to represent them in terms of lines, it's to further enhance my understanding. So मैं क्या करूँगी? Firstly, I have written that these are discrete lines to represent continuous magnetic field. 1. Second point is that magnetic field lines are always closed loops. ये हमेशा closed loops हैं. Then next is the magnetic field lines. Magnetic field lines density. If I talk about the density of field lines, कि ये पास कितने हैं, कितना दूर हैं किसी particular per unit area, per unit volume. So magnetic field lines density is directly proportional to the strength of magnetic field. यानी कि higher the density, point is higher the density, higher is the field strength. यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी वहीं फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. देन लोअर द डेंसिटी, लोअर द फील्ड स्ट्रेंथ. अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है एक, कि अगर मैं एक बार मैग्नेट बनाती हूँ आपके सामने एंड आई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, यू सी you'll draw them like this. Firstly, ये मैंने बनाई. मैं दो बना के दिखा रही हूँ. सो फर्स्टली नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, और साउथ से फर्दर नॉर्थ. क्योंकि क्लोज लूप्स हैं इसीलिए अंदर से इनवर्ड भी जाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा. ठीक, तो यू मे सी दिस. ये फील्ड लाइंस ऐसे एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं इनसाइड द बार मैग्नेट. सो द पॉइंट टू नोटिस हेयर इज दैट एट द पोल्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम. यस, आप देख सकते हैं कि पोल्स वाले पॉइंट्स पे चार चार फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं. ये चार मैंने सिर्फ बनाई हैं, एक्चुअल में ये इनफाइनाइट भी होती हैं. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर maximum. This implies is field strength is maximum. At poles, ये भी बात दिमाग में रखनी है. और फार अवे देखोगे तो जितना इसके अलावा इनसाइड द बार मैग्नेट field lines are parallel to each other. So there is uniform magnetic field
डिनोटेड बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, बी इनसाइड अ लॉन्ग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की बात होगी, बार मैग्नेट हो गया या लॉन्ग सोलेनॉइड हो गया, इन सब के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आती है। लॉन्ग बात समझना ज़रूरी है, वाई, बिकॉज जो लंबा सा बार मैग्नेट होगा उसमें एंड्स का इफेक्ट नहीं आएगा, तो सेंटर में फील्ड और ज़्यादा यूनिफॉर्म बनती जाएगी, पैरेलल लाइंस, यस, पैरेलल फील्ड लाइंस इनसाइड। सो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। जहाँ ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की, वहाँ पे पोल स्ट्रेंथ, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम आएगी। तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो आपको हर चीज़ में देखना है, हर केस में। इस केस में भी मैं एनालाइज करूँगी अभी। ओके, सो बिफोर आई मूव फर्दर, हियर वी हैव अनदर पार्ट। अब एक और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो आपको फील्ड लाइन्स के बारे में समझनी है वो है दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। Because if they do, it would mean that we have two direction of fields at that point, which is not possible. और ऐसे पॉइंट पर क्या होता है, जो कंपास होता है वो अपने आप को दो डायरेक्शन में ओरिएंट करने लगता है। तो जैसे अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से यूँ जा रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है टेंजेंशियल, सो अगर मैं यहाँ पे एक कंपास रख देती हूँ तो कंपास क्या करेगा, डेविएट होता रहेगा ऐसे ऐसे करके। अगर एक परफेक्ट अच्छा कंपास होगा तो शायद इनके रिजल्टेंट की तरफ चल जाएगा, इनके रिजल्टेंट, बट एक नॉर्मल छोटे कंपास जो होंगे वो आपको ऐसे डेविएट करते हुए दिखेंगे, इस तरीके से ओरिएंट होता रहेगा बार बार। सो दैट्स वाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये भी लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकालते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ बी निकालने का पहली तरीका, हैव ड्रॉ अ टेंजेंट at the point where field is to be found. पहली चीज़। सेकेंड, keep a compass at that point. So if it orients away, like the arrow, let me show how. Like if I have a field line like this, I have this device and I have a field like this. This you can easily say that नॉर्थ साउथ, आपको पता है कि नॉर्थ साउथ क्या है तो लूप की डायरेक्शन क्या होगी। बट अगर मैं यहाँ पे एक कंपास रखती हूँ तो एक तो मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, ये फील्ड लाइंस बनाई भी कंपास का ही यूज़ करके जाती है। हम हर पॉइंट पे एक एक कंपास रखते हैं और देखते हैं कि कंपास का जो एरो है वो किधर पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है इसलिए ये वाला नॉर्थ इससे रिपेल होकर इधर को जाएगा। सिमिलरली यू प्लेस अनदर कंपास हेयर एंड फिर से अगर आप बनाएंगे तो आपको एरो इधर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये रिलेट कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे एरो, यू कीप ऑन ड्राइंग इट दिस वे एंड देन फर्दर एंड देन हेयर ऑल्सो। ऐसे करके आप हर पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, कंपास रख के, और आप अभी तो आप कंपास रख रहे हैं बट एक्चुअली क्या है ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पे आपने एरो बनाया तो यू बेसिकली ड्रू अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। So this is how you find the direction using a compass and by drawing a tangent at that point, and this is how you get a close loop. You get a loop, you get half part of the loop outside, but as you know the magnetic field lines can never be like open loop, can never be such that they are not closed loop. So
you have to complete this field line from inside. So बाहर north से south, अंदर south से north. So these are the 5 points regarding the field lines that you need to know. Next is magnetic field for a current carrying wire, जिसका मैंने example से शुरुआत की थी, but अभी मैं इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड करूँगी कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो सबसे पहले आपने एक एरो बनाया टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो अगर अब मेरे को फील्ड लाइंस बनानी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे लूप्स बनाने हैं. ज़रा देखिए मैं लूप्स कैसे बना रही हूँ. जब हम वायर के पास हैं तो मेरे लूप्स एक दूसरे के पास पास हैं. And as I'm going far from the wire, the loops are becoming a little far away from each other. Yes, the radii of the loops is increasing. So I made this like that. So now, if you have to write the points, first, magnetic field lines just current carrying wire are closed loops. This you already know. Direction can be found using right hand thumb rule. ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे तो योर फिंगर्स विल इंडिकेट द कर्ल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. आपकी फिंगर्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो भी कर्ल बनने वाला है वो इंडिकेट होगा. ये भी मैटर करता है नेचुरल कर्ल ऑफ योर फिंगर्स. ऐसे नहीं कि आप इनको पीछे की तरफ मोड़ के लेके जा रहे हैं, दैट्स अननेचुरल कर्व. तो व्हेन यू पास करंट through a wire and put your right hand thumb in the direction of the current flowing and you see the natural curl of your fingers, then the place where you are placing your fingers and the curl is going upward, that would indicate that the field line at this point would come outside. तो देखो ये बाहर को आ रही है. yes, and similarly if you see this point, अगर मैं यहाँ की करूँ तो अब मेरी फिंगर्स का कर्ल नीचे की तरफ अंदर को जाएगा. yes, सो इसलिए इन पॉइंट्स पे फील्ड लाइंस अंदर को जाएंगी. तो अभी ये कहानी हुई. अब सोचना ये है कि जो भी इंसान बाहर को बैठा है, यानी जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से देख रहा है, तो उसे ये वाली साइड तो पेज के अंदर वाली साइड है. पेज के बाहर वाली साइड पे देखो तो मुझे बताओ कि ऊपर से या नीचे से कहाँ से फील्ड लाइंस बाहर आती हुई अपीयर हो रही हैं. आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ कि ये फील्ड लाइंस ऊपर से बाहर को आ रही हैं. ये ऐसे लूप्स हैं. देखो फील्ड लाइंस यूँ बाहर को आ रही हैं पेज के बाहर, और नीचे से वो पेज के अंदर जा रही हैं. तो अगर वो यहाँ से बाहर की तरफ आ रही हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मेरा नॉर्थ पोल बनेगा. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं फील्ड लाइंस emerge from north. पोल ऑफ बार मैग्नेट. हाँ, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऊपर हमारा नॉर्थ पोल है. और किसके लिए? फॉर अ पर्सन. ये सिर्फ उसके लिए है, फॉर अ पर्सन सिटिंग आउटसाइड द पेज. जो हम जैसे जहाँ बैठे हैं, पेज के बाहर जो बैठा है उस इंसान के लिए नॉर्थ पोल ऊपर लाई करेगा. नॉर्थ पोल ऊपर है तो साउथ पोल नीचे होगा, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइंस कन्वर्ज एट साउथ पोल. ठीक है. और ये भी किसके लिए? फॉर अ पर्सन सिटिंग आउटसाइड. अब अंदर वालों की कहानी उल्टी हो जाएगी. अंदर जो है ना, पेज के अंदर से अगर कोई दिखेगा तो उसे लगेगा फील्ड लाइन साउथ से बाहर को निकल रही है और नॉर्थ की तरफ जा रही है. तो उसके लिए ये नॉर्थ, अंदर वाले के लिए जो पेज के अंदर की साइड पे बैठा है उसके लिए नीचे वाली साइड नॉर्थ पोल बनेगी, ऊपर वाली साइड साउथ पोल बनेगी. सो अब आप अपने आंसर में, अब जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे तो अगर आप लूप्स वगैरह डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है, तो आप बस इस पे फोकस कीजिए कि आप कहाँ बैठे हैं और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. और टीचर भी उसी पे फोकस करेगा. यू डोंट नीड टू से दैट फॉर अ पर्सन सिटिंग इनसाइड दिस इज गोइंग टू बी अपोजिट. यू डोंट नीड टू मेंशन, यू जस्ट फोकस ऑन वेयर यू आर सिटिंग. सो अब डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. मैंने आपको समझा दिया. इसकी स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखनी है.
लिखनी पड़ेगी. नेक्स्ट इज दिस डेंसिटी. सो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर द वायर इज मैक्सिमम. देख सकते हैं आप वायर के पास मैक्सिमम है. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या यूँ कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू रेडियस. यस, रेडियस के पास है. क्लोजर टू वायर, वायर के बहुत ज़्यादा पास है. तो अब इससे क्या पॉइंट एमर्ज होता है? इससे ये पॉइंट एमर्ज होता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. 12th में जब आप जाएंगे तो आप इसकी वैसी प्रोपोर्शनलिटी भी देखेंगे जो आपको फॉर्मूला की फॉर्म में देगी. पर फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी रेडियस क्या, किसका रेडियस, इसका, ये लूप का जो रेडियस है. तो जितना बड़ा रेडियस होगा, अगर ये रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी. दिस योर फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड. एज द मैग्नेटिक फील्ड keeps on as the radius, as you keep on going far from the wire, the magnetic field strength is going to keep on reducing. Second is B is directly proportional to the current. कितना करंट आपकी वायर से फ्लो हो रहा है उस वो डिसाइड करेगा कि वायर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, कितने स्ट्रॉन्ग और कितने ज़्यादा लूप्स बनेंगे. अगर करंट ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ये जो लूप्स हैं ये और पास आ जाएंगे और ज़्यादा नंबर में हो जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड. सो अभी आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए और आई थिंक इतना ही काफ़ी है आपके लिए. अगर वायर थिक होगी तो क्या होगा? वायर थिक होगी तो भी अब वायर में से जो वायर की रेजिस्टेंस है उसको आप फर्दर कर सकते हैं एलैबोरेट. इफ़ वायर इज थिक देन एरिया इंक्रीजेस, और एरिया इंक्रीज होगा तो वायर की रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A डिक्रीज कर जाएगी. और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई. एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस I इंक्रीजेस फॉर सेम वोल्टेज, यानी अगर आपने सेम वोल्टेज पे वायर को करंट दे रहे हैं और रेजिस्टेंस उसकी कम हो चुकी है तो अब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो B फर्दर इंक्रीज करेगी. Yes, so this is how you have to keep in mind the magnetic field of a current carrying wire. Now next is the magnetic field of current carrying loop. तो करंट कैरिंग लूप के केस में क्या है? करंट कैरिंग लूप के केस में आपके पास मैं एक लूप बनाऊंगी. अगेन जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसे 3D बनाना है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो. हमेशा एक थिक वायर का बनाना है. तो अब यहाँ से वायर को मैं एक बैटरी से जोड़ दूँगी. मतलब मैं 2 सिंगल इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आगे और पीछे का डिफरेंस समझा सकूँ. क्योंकि अगर आप सिंगल वायर के थ्रू बनाएंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पार्ट आगे है और कौन सा पीछे. ये मेरी करंट की डायरेक्शन है. नाउ करंट गोइंग दिस वे, करंट कमिंग दिस वे. अब अगर मैं लूप्स बनाऊँ तो सबसे पहली बात मुझे पता होनी चाहिए कि करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? क्लोज लूप्स. सो आई एम मेकिंग द क्लोज लूप्स. 4 यहाँ से बनाएंगे, 4 वहाँ से बनाएंगे. ये हुए आपके 4 लूप्स. दोनों के साइजेस अलग अलग हैं. सॉरी फॉर द ड्राइंग, बट वो आप ठीक करेंगे आई बिलीव. लीजिए, ऐसे होना नहीं चाहिए. इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा पास आ रही है, यानी इसमें से करंट ज़्यादा हो गया. ऐसा नहीं होता. हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने एक ऐसी वायर ली जो यहाँ से पतली है और यहाँ से मोटी हो रही है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि एकदम से फील्ड डेंसिटी यहाँ आ जाएगी. पर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी की है. आप ये ध्यान रखिएगा कि जितनी फील्ड लाइंस आप इस तरफ बनाएंगे उतनी आपको इधर बनानी है. सो अब अगर मैं इसके लिए देखूं कि लूप्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी तो देखो, थंब मैं इस तरफ पॉइंट आउट करूँगी तो फॉर दिस इनवर्ड द
magnetic field lines are the natural curl of my fields is going natural curl of my fingers is going inward. करंट ऐसे, ये फील्ड इनवर्ड. सो यानी लूप्स को मेरे को जो किस तरफ बनाना है, इधर. ये लूप्स की डायरेक्शन. लूप्स अंदर को, अगर ये यहाँ से अंदर को जा रहे हैं तो ये यहाँ से फॉर सर्टेन बाहर निकलेंगे. सेम अब आपको इसके लिए करना है दूसरी साइड के लिए. तो अगेन मैं दूसरी साइड पे अगर मेरा थंब नीचे की तरफ पॉइंट करूँ तो मेरी राइट हैंड का जो नेचुरल कर्ल है वो बाहर के लिए ऊपर की तरफ आ रहा है, अंदर के लिए नहीं, बाहर के लिए. ये नीचे, तो मेरी फिंगर्स जो लूप के बाहर जा रही हैं उनका नेचुरल कर्ल ऐसे बाहर को आ रहा है. तो मैं इसको बनाऊंगी तो ये बाहर को ऐसे बन जाएंगी. बट ये जा किधर को रही हैं, फिर अगर ये आई यहाँ से हैं तो अंदर को जाएंगी. यस, सो यू सी द लूप्स आर फॉर्मिंग लाइक दिस. एंड डायरेक्शन भी आपको दिख गई. अब आप सोचिए कि जहाँ से आप बैठे हैं वहाँ से आपका नॉर्थ, मतलब आपकी फील्ड लाइंस कहाँ से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं. मतलब अंदर, लूप के अंदर से बाहर आ रही हैं या लूप के बाहर से बाहर आ रही हैं. जहाँ आप बैठे हैं, पेज के अंदर बैठ के मत सोचिए, पेज के बाहर सोचिए कि ये कहाँ से आ रही हैं. तो आप देख सकते हैं एरोज़ यहाँ से बाहर को हैं दोनों साइड. तो यानी दोनों साइड्स हमारी क्या होंगी, नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल. और जब ये यहाँ से अंदर को जा रही हैं तो ये अंदर मेरा क्या बन जाएगा, साउथ पोल. तो ये सिर्फ इन्हीं दो जगह पे नहीं हो रहा, ये पूरे लूप के अक्रॉस हो रहा है. यानी कि आपको ये पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर 3D. ये 3D है, इट्स नॉट जस्ट अ 2D थिंग. ये आपके कागज़ पे नहीं हो रहा है, ये पूरा 3 डायमेंशनल है. पूरा यू सी दिस क्लाउड बीइंग फॉर्म्ड. ये पूरे आपके ऐसे लूप्स आपको सिर्फ ये दो जगह नहीं मिलेंगे, ये पूरी जगह पे मिलेंगे. तो अंदर सिर्फ साउथ बन रहा है और बाहर सारा नॉर्थ 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 हर जगह. ओके. सो अगर इसमें भी आपको पॉइंट्स नोट करने की, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है तो आप लिखिए B इज़ फॉर मैग्नेटिक फील्ड डिनोटिंग. सो B इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. या यहाँ भी रहेगा कि क्लोजर टू द वायर मोर इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ. जितने पास रहेंगे आप वायर के उतनी ज़्यादा आपको फील्ड स्ट्रेंथ मिलेगी. सेकेंड, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज़्यादा हायर द करंट, हायर इज़ द फील्ड स्ट्रेंथ. एंड बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इफ़ यू रिवर्स direction of current, the poles would change. मतलब जो आपने अभी जज किया, अगर इसी को मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर लगा देती, करंट अपोजिट चलता, तो मेरा बाहर सिर्फ साउथ पोल आता और अंदर नॉर्थ पोल आता. तो ये सब आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा अगर मैंने लूप ऐसा बना दिया जिसके ऊपर वायर एक सिंगल नहीं है, 2-3 वायर के टर्न्स बढ़ रहे हैं. सो इफ़ यू मेक अ लूप लाइक दिस, कि आपने यूँ किया, अब आपकी वायर यूँ वापस नीचे आने से पहले फिर घूम रही है, फिर ऐसे घूम रही है. मतलब वायर के ही आपने टर्न्स बना दिए हैं. थिक कॉइल्स आपने देखी होंगी. इंसुलेटेड वायर है, ठीक है. इंसुलेटेड वायर, n टर्न्स इन द लूप. एक ही लूप में आपने n टर्न्स बना दिए. देखा होगा आपने कभी, आप क्या करते हैं, रस्सी को जब आप यूँ करके गोल गोल घुमा के यूँ बना देते हैं. जैसे रस्सी हो गई, आपने स्लिंग की तो सोलेनॉइड हो गया. मतलब नॉर्मली अगर आपके पास कोई वायर हो और आप उसमें पास एक एक करके लाए जा रहे हैं उनको, तो वो एक, और साथ में उन्हें जोड़ दिया, तो वो एक लूप बन जाता है जिसमें क्या हो गए, n टर्न्स. तो अगर आपने n टर्न्स बढ़ा दिए हैं तो आपकी जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, n के. हायर द नंबर ऑफ टर्न्स, हायर इज द फील्ड स्ट्रेंथ. सो इसे भी आपको दिमाग में रखना है. ओके, सो आपने ये वाला भी देख लिया. अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड करते हैं हम.
ठीक है। सोलेनॉइड होता क्या है कि एक आप सिलेंड्रिकल कोर ले लीजिए, ठीक है, उस कोर पे आपने वायर को घुमाना शुरू किया, ये आपका ऐसे सोलेनॉइड बनता जाता है। यहाँ पे तो मैं आपको कम टर्न्स दिखा रही हूँ, बट उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, कई 200, 500, 600 टर्न्स के सोलेनॉइड भी होते हैं। और फिर यहाँ से वायर आई थी, आपने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, स्विच भी लगा दीजिए, और फिर वो यहीं से वायर घूम के वापस आ जाएगी। तो जब ऐसे हो रहा होगा तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा और फिर यहाँ से वापस आएगा। दिस इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज a device where we place, we coil, you can say we coil a wire, copper wire or any other metallic wire, copper wire around it with N turns. Where we coil a copper wire around it with N turns and इसके अलावा नाउ इसके यूजेस हैं फॉर दैट। सोलेनॉइड के बहुत सारे यूजेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है इससे, और अगर आप इसकी प्लेसिंग थोड़ी सी मतलब चेंज करें, अलग फॉर्म में इसे यूज़ करें तो ये इंडक्टर भी बनेगा आगे जाके। सो दैट्स एन ग्रेट 12th थिंग, बट फॉर नाउ वी नीड टू नो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज फॉर्म्ड। तो उसके लिए मैं पेज चेंज करूँगी और हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब आपको क्या करना है, अगेन आपको थिक वायर लेनी है। यहीं से शुरू करते हैं और बहुत टर्न्स नहीं बनाएंगे हम, 3-4 टर्न्स में हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से इसको वापस निकाल देते हैं। And now you have this thing, you have battery, you can connect a switch, you should. That's how the current is flowing. Okay, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से यूँ बाहर को बाहर को बाहर को। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में से बनाएंगे तो थोड़ा एक बात सोचेगा कि ब्लैक कलर, ब्लू कलर, 2 कलर यूज़ कीजिएगा, एरो करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए अलग और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए अलग, ताकि टीचर के लिए भी ईजी हो जाए समझना। सो नाउ इफ़ यू सी दिस लूप, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें कोई 2 पॉइंट्स लूँगी, एक ले लेती हूँ मैं P और एक लेती हूँ मैं Q। ऐसे यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, R ले सकते हो, S ले लो, ठीक है। अब क्या है कि सबसे पहली चीज़ है कि मुझे बनाने हैं क्लोज लूप्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। तो अगर क्लोज लूप बन रहे हैं तो सोलेनॉइड है ये, वायर रोल अप कर रही है, तो वायर के अंदर से जाएंगे और बाहर को निकलेंगे ऐसे। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ, मैं इसको देख के हमेशा पता लगा सकती हूँ कि मेरा लूप का आगे वाला पार्ट कौन सा है और पीछे वाला कौन सा है। क्योंकि मैंने वायर को क्या बनाया, थिक बनाया, तो इससे सब दिख रहा है। ठीक, अब एक और बना लेते हैं, सिर्फ एक और, ताकि एक और मतलब ताकि थोड़ा सा और रिलेट कर सको आप ये कैसे आपको दिखेगा ये बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। तो अभी तो सिर्फ मैंने 2 लूप्स ही बनाए हैं, अभी इसमें डायरेक्शन लगाना बाकी है। अब ये जो P पॉइंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि P पॉइंट पे करंट किधर को जा रहा है, अंदर को आ रहा है कि बाहर को, तो आप देखो यहाँ से करंट यू गया है, P ऊपर ही है, तो करंट थंब मेरा बाहर को है। यस, थंब मेरा बाहर को है, तो देखो ज़रा मेरी फिंगर का कर्ल कैसे जा रहा है, ऊपर से ऐसे। सो अगर ये ऐसे जा रहा है तो मुझे ऊपर वाली फील्ड लेंस पे एरो ऐसे बनाना है। P पे करंट यूँ बाहर को, थंब, और कर्ल, नेचुरल कर्ल ऑफ द फिंगर इज दिस वे। तो P हो या R हो या अगर कोई और पॉइंट यहाँ पे X, Y, Z जो भी नाम दे दूँ, सब ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए लूप की डायरेक्शन ऊपर ऐसे लेफ्ट वर्ड हो रही है, ठीक है। सो ऐसे मैंने बनाया।
अब ऊपर अगर लेफ्टवर्ड है तो इस लूप को अंदर क्या होना पड़ेगा, इनवर्ड। आप पेंसिल से, ब्लैक कलर से, जो भी आपके पास कलर होगा उससे आप ऐसे करके दिखाइएगा। अब क्यू पे देख लेते हैं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने के लिए। तो अगर ये जो क्यू है, क्यू पॉइंट, माना कि क्यू पॉइंट पे ऊपर की तरफ मेरा नेचुरल कर्ल ऑफ फिंगर इज गोइंग इनवर्ड, तो ये ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ क्या है, ये लूप के अंदर। तो लूप के अंदर क्यू में फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, क्यू की वजह से भी इधर की तरफ, यानी सारी फील्ड लाइंस इधर तो अंदर को हो रही हैं। पर ये लूप के बाहर क्या हो रहा है, लूप के बाहर ये फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। तो दैट्स अ ब्यूटी कि अगर मैं अब यहाँ के लिए कहूँ तो ये तो यूँ जा रही हैं, पर अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ तो मेरी फिंगर का कर्ल ऐसे यूँ जाएगा, यानी लूप्स के बाहर फील्ड लाइंस ये ऐसे बन रहा है। आप अपना फिंगर को यूज़ कीजिएगा। मेरे पास थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, आई विल शो इट टू यू कि अगर मैं ये नीचे वाला पॉइंट लूँ तो मेरा ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए नेचुरल कर्ल ये ऊपर पी पे करंट यू बाहर को निकल रहा है, तो लूप्स ऐसे जा रहे हैं। क्यू पे करंट अंदर को जा रहा है, तो मेरा फिंगर का लूप अंदर को जा रहा है। दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, आप देखिएगा ऐसे करके आपका फिंगर का नेचुरल कर्ल नीचे को बाहर की तरफ आएगा। तो दिस इज़ हाउ यू कैन जज। तो अभी हमने 2 लूप्स बना लिए। अब अगर आप यहाँ बाहर को बैठे हैं तो आपके सामने ये देखिए फील्ड लाइंस के लूप्स ऐसे जा रहे हैं यहाँ, और यहाँ से भी ऐसे जा रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और यहाँ से अगेन निकल रहे हैं। तो अगर कोई कहे आपसे कि आप जहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से फील्ड लूप्स कहाँ से, मतलब फील्ड लाइंस कहाँ से इमर्ज हो रही है, तो आप कह सकते हैं ये दे आर फील्ड्स आर लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम हेयर, सो दिस इज़ योर नॉर्थ पोल। फील्ड लाइंस कमिंग आउट, मतलब कमिंग आउट फॉर आउटसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाहर से अगर देखें तो आपके लिए फील्ड लाइंस इधर से इमर्ज हो रही हैं, तो इसलिए ये आपका क्या हुआ, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ पोल है तो ये क्या होगा आपका साउथ पोल। तो अब इसमें पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट फील्ड लाइंस emerge from south, emerge from north and converge at south for what can you say, for outside the solenoid. सोलेनॉइड के बाहर अगर देखें तो वो नॉर्थ से एमर्ज कर रही हैं और साउथ पे कन्वर्ज कर रही हैं, बट इनसाइड, अंदर की बात देखें तो इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। इनसाइड डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस is south to north. This implies is, इसका क्या मतलब हुआ, it is behaving like a bar magnet. आपके पास ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, 1 क्योंकि इसके 2 पोल्स हैं। इट्स फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म। अंदर की अगर फील्ड की बात करें तो वो यूनिफॉर्म पैरेलल फील्ड लाइंस हैं, यस। तो इसलिए वो, ये यूनिफॉर्म की स्पेलिंग गलत है, यूनिफॉर्म पैरेलल फील्ड लाइंस है, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट में भी होता है, पर कैसे वाला, फॉर अ लॉन्ग बार मैग्नेट, लॉन्ग वाले बार मैग्नेट में। तो ये वाला भी क्या है आपका, लॉन्ग सोलेनॉइड आप लेंगे इसे, ठीक है। तो अब ये आपके पास 2 चीज़ें आ गई। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम एट पोल्स, क्योंकि वहाँ आप डेंसिटी बढ़ते देख सकते हैं। बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। कितना मैक्सिमम, हायर द करंट हायर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे सोलेनॉइड में उतनी ज़्यादा फील्ड ऐड होगी। पी की, क्यू, आर की, यहाँ पे जेड, वाई, जो भी आप नाम देंगे, सब पॉइंट्स अपनी अपनी फील्ड को ऐसे क्या करते हैं, एडअप कर देते हैं। इसीलिए ऐसे लूप्स प्रॉपरली ऐसे बन जाते हैं। एक की फील्ड भी ऊपर को आ रही है, इसकी भी इधर ऊपर को आ रही है, तो ये सारी की सारी एडअप हो जाती हैं, ओके। और अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना, मतलब इस केस में ऊपर तो ठीक है, पर अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये, हाँ, सिर्फ एकदम क्लोज टू पॉइंट्स, ये वाले जो पॉइंट्स बनाएंगे हम,
इनका नाम रख सकते हो आप एक्स वाई जेड, दो लूप्स के मिड का, पॉइंट्स बिटवीन टू लूप्स, दो लूप्स के बिटवीन टू लूप्स एंड क्लोज टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एकदम पास और दोनों पॉइंट्स के पी और आर के बीच में, एंड क्लोज टू सोलेनॉइड, लाइक एक्स बिटवीन पी एंड आर। पी और आर दो लूप्स थे, उन दोनों लूप्स के बीच में एक पॉइंट है एक्स, एकदम ये वाला पी और आर दो पॉइंट है, इनके बीच में लूप का पॉइंट है एक्स। बी एट एक्स एंड बी एट वाई, एंड ऐसे ही जो भी आप पॉइंट ले लो, बी एट जेड भी ले लो, उस पर भी आपकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज़ीरो। एकदम पास सोलेनॉइड के फील्ड स्ट्रेंथ क्या आती है, ज़ीरो। हाँ, ऊपर बढ़ती है, ठीक है, ऊपर वो एड अप हो जाती है, बट यहाँ पास में नहीं होती फील्ड, एकदम मतलब सोलेनॉइड की एकदम पास पास आपको कोई फील्ड नहीं मिलेगी, थोड़ा दूर दूर आपको फील्ड लाइंस ऐड होती हुई मिलेंगी। सो नेक्स्ट, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, और बस एक चीज़ हो गई आपकी, आपका जो फॉर्मूला होता है ना बी का, अगर मैं कहूँ 11th-12th के बच्चे लिखते हैं इसे, इट इज़ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एन आई, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट में एन अपॉन एल आई ये होता है। सो अब म्यू नॉट क्या है, मटीरियल, कि आपने किस मटीरियल को अंदर रखा है इनसाइड सोलेनॉइड। तो अगर आपने मटीरियल इनसाइड द सोलेनॉइड क्या रख दिया, आयरन रख लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी बहुत तेज़ इंक्रीज करेगी, ठीक है। और अगर कोई और मटेरियल रखा, कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो फील्ड को रिपेल करते हैं, तो वो फील्ड का अगर आपने कोई रॉड वगैरह रख दिया तो फील्ड अंदर होगी ही नहीं, बाहर हो जाएगी, रिपेल करेगी। देन नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी अगर लेंथ लंबी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। क्यों, एक्चुअली नंबर डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ बड़ी हो गई तो नंबर डेंसिटी ने कम हो जाना है, इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, तो ये भी आप दिमाग में रखेंगे, ओके। और आई तो आपको दिख ही रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आपका सोलेनॉइड का केस कंप्लीट हुआ, यस। अब इसके बाद ये जब आपका सबसे क्रूशियल टॉपिक हो चुका है, इसके बाद अब आपको सीखना है लेफ्ट हैंड थंब रूल। किस लिए है, लेफ्ट फ मतलब फोर्स, लेफ्ट हैंड थंब मत कीजिएगा, लेफ्ट हैंड रूल लिखिएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, होता क्या है कि व्हेन यू कीप a current carrying wire inside an external magnetic field, such that the angle between B external यानी external magnetic field and I flowing through wire is at an angle theta, कि B external और I flowing through the wire is at an angle theta, which is theta must be, मतलब must not be, अगर मैं कहूँ कि थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों के अलावा अगर थीटा कोई भी एंगल है, देन द रॉड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, रॉड को एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये प्रिंसिपल हम मोटर के केस में भी लगाते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अ मोटर। कौन सी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है ये। पर कब, जब अगर आपके कोर्स में ये होता, अब ये कोर्स में है ही नहीं। सो अब आपके सामने एक केस है कि आपको एक रॉड मैंने दे दी है, अब इस रॉड में मुझे क्या करना है कि मुझे रॉड मैंने आप हैंग की है, कैसे हैंग की है, ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में भी दिया है।
आपने क्या किया, एक सर्किट बनाया है, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगा दी, यहाँ से आप चाहे रोल कीजिए या कुछ भी करिए, बट आपने सर्किट एक तरीके से क्लोज़ किया, यहाँ पे आपने एक की लगाई, और ये जो बैटरी का दूसरा टर्मिनल है, मतलब सॉरी हाँ, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे अलग एंड पे लगा दिया। तो बेसिकली आपका करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, वो रॉड में भी ऐसे जाएगा, यहाँ से निकलेगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट लगाएंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लगा दिया है। मतलब बार मैग्नेट नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी यू शेप्ड। लेट्स से आई पुट अ यू शेप्ड मैग्नेट है। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने साउथ बना दिया, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं चाहूँ तो वायर को, और मैं वायर को थोड़ा मोटा बनाऊँगी ताकि आपको ये पता चले कि ये वायर कहीं भी, ये लोग एक दूसरे को मतलब कहीं से सर्किट टूट नहीं रहा है, कनेक्शन गड़बड़ नहीं हो रहे हैं। सो मैंने ये बनाया मेरा क्या, एक सोलेनॉइड। ये है आपका नॉर्थ पोल, वो आपका साउथ पोल। अब इसको यूँ जोड़िए, दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग। सो दिस इज टू प्रोवाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ये एक करंट कैरिंग वायर है आपके सामने। ठीक, सो अगर आप इसको देखें तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, आई की डायरेक्शन हुई ये। मुझे लगता है दूसरा कलर यूज़ करना होगा टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। तो करंट मेरा इस तरफ है आई। अगर मैं कहूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, यानी यूं, ये बी है। आई बी दो चीज़ें हैं, दोनों के बीच में एंगल आप देख रहे हैं 90 है। अब आप क्या यूज़ करेंगे, अपना लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड के लिए पहले लेफ्ट हैंड निकालिए। लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपनी यहाँ से शो करें, सो व्हाट डज द लेफ्ट हैंड रूल सेज, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। यस, ये कहता है कि विद दिस फिंगर, दिस इंडेक्स फिंगर, इससे हम अक्सर बुरे लोगों को दिखाते हैं कि तुम बुरे हो। तो दिस बुरा मीन्स बी, and this B means the magnetic field. So all the magnetic field lines are indicated with this B. Just a second.